بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا خادم قاری غلام مصطفیٰ نقشبندی۔ سب سے پہلے تو دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور دعا ہے کہ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی عطا فرمائے، اور جن کی وفات پا گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت عطا فرمائے، اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ عطا فرمائے۔ اور جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، جن کے اوپر سختی ہے، اللہ تعالیٰ عز و جل ان کی مشکلیں آسان فرمائے اور ان کی غائب سے مدد فرمائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس کچھ اور تو چیز نہیں ہے جس سے ہم جا کے فلسطین والوں کی ہیلپ کر سکیں یا کشمیر والوں کی، تو ہر نماز کے بعد جو ہے دعا جو ہے وہ ان کے لیے لازمی کیا کریں، کیونکہ مومن کا ہتھیار جو ہے وہ دعا ہے۔ تو آئیے اب ہم چلتے ہیں حروف کے مخارج کے بارے میں پڑھنے کے لیے۔ میں نے پچھلی ویڈیو جو بنائی تھی، پچھلے مثلا کے سبق جو پڑھا تھا ہم نے پڑھا تھا اصول مخارج کا۔ اصول مخارج جو ہے وہ میں نے آپ کو بتائے تھے کہ 5 ہیں، اس میں ایک حلق ہے، لسان ہے، شفتین ہے، جوف دہن اور خیشوم، یہ بتائے تھے میں نے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ میں نے آپ کو جو بتائے ہیں وہ ایسی طرح ہی ویڈیو کے اندر بتائے ہیں، لیکن آپ کو لکھ کر میں نے باقاعدہ جو ہے وہ پریکٹیکل کر کے نہیں دکھایا۔ تو انشاءاللہ عز و جل میں آج جو ہے وہیں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، سبق نمبر 1 سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں، مثلا کہ وہ سبق نمبر 1 کا پارٹ 1 ہے، یہ سبق نمبر 1 کا پارٹ 2 ہے، اس سے ہم دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں، اور باقاعدہ میں آپ کو انشاءاللہ عز و جل لکھ کے بات کروں گا۔ تو آئیے اب ہم چلتے ہیں اصول مخارج کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن۔ تو اب ہیں جی اصول مخارج۔ اصول مخارج، اصول مخارج کتنے ہیں؟ 5۔ نمبر 1 حلق، اور نمبر 2 ہے لسان، اور نمبر 3 جو ہے وہ ہے شفتین، شفتین، اور نمبر 4 جو ہے وہ ہے جوف دہن، جوف دہن، اور نمبر 5 جو ہے وہ ہے خیشوم۔ حلق کس کو کہتے ہیں؟ حلق سب کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے اس جگہ کو حلق کہتے ہیں ہم، اور اس سے جو ہے کتنے حروف اس سے نکلتے ہیں؟ مثلا کہ حروف مخارج جو ہے، مخارج کا مطلب مخارج جو ہے یہ مخرج کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے نکلنے کی جگہ۔ نکلنے کی جگہ، پلیز یہ میں آپ سے ایک درخواست کروں گا کہ یہ اس کو آپ نا نوٹ کرتے جائیے گا تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے، اس لیے جو ہے یہ میں آپ کو لکھ کے بتا رہا ہوں، کیونکہ اس کا لکھنا جو ہے وہ اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ کو بعد میں یاد رہے کہ یہ میں نے کیا بتایا تھا آپ کو، اور آپ کو ایزی رہے اور یاد رہے۔ اور ان کا جو ہے مخارج کا جو ہے وہ پڑھنا ضروری اس لیے ہے کہ تاکہ آپ جو ہے قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح تلفظات کے ساتھ آپ پڑھ سکیں، خوبصورتی کے ساتھ آپ پڑھ سکیں، کیونکہ جو ہے وہ آپ دوسری کتابیں جو پڑھتے ہیں انگلش، اردو،
जो भी है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, जो भी पढ़ते हैं, अगर उनमें कोई गलती या कोताही हो जाती है तो वो चल जाता है। लेकिन इसमें कुरान मजीद फुरकान हमीद एक ऐसी किताब है जिसके अंदर आप गलती नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप गलती करते हैं तो बजाय इसके कि कुरान पाक पढ़ने का आपको सवाब मिले, उसका आपको बल्कि उसका उल्ट जो है वो आपको गुनाह मिलता है। और कुछ अल्फाज जो ऐसे होते हैं जिसका मायने ही चेंज होता है, मसलन के ज़बर, ज़ेर, पेश, खड़ी ज़बर है, जो भी है उसका वो मतलब ही चेंज हो जाता है। तो इसलिए प्लीज़ मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इसको नोट करते जाइए। हलक मैंने आपको बताया कि इस जगह को ये कहते हैं, और इसके भी 3 हिस्से हैं। ये 3 हिस्से हैं। हलक की जड़, जड़ जो है वो ये जो आपके सीने की तरफ है, वो मैं आसान अल्फाज में बता रहा हूँ आपको, जो सीने की तरफ है इसको कहते हैं हलक की जड़। और नंबर 2 पे है, इसके भी हलक के 3 हिस्से हैं, ठीक है, हलक की जड़। और उसके बाद है वस्ते हलक, वस्ते हलक। और नंबर 3 जो है वो है इब्तदाई हलक, इब्तदाई हलक। हलक की जड़ जो है ये जो सीने की तरफ है आपके। वस्त हलक जो है ये जो कंडी है, ये जो यहाँ पे जो नजर आती है, ये है वस्त हलक है। ये जो आगे इब्तदाई हलक है, ये जो आपके मुंह की तरफ जो है ऊपर, वो है इब्तदाई हलक। ये हलक है। हलक के भी आगे 3 अकसाम है। हलक की जड़ है, वस्त हलक है, इब्तदाई हलक है। आगे है लिसान। लिसान किसको कहते हैं? लिसान अरबी का लफ्ज है, और इसको लिसान जो है वो जबान को कहते हैं अरबी में, जुबान। ये मैं लिख देता हूं ऊपर। अब जबान जो है इसके भी 3 हिस्से हैं, इसके भी 3 हिस्से हैं। जबान की जड़, जबान की जड़। उसके बाद नंबर 2 जो है वस्ते जबान, वस्ते जबान। और उसके बाद जो है वो है नोके जबान, नोके जबान। लिसान जो है वो जुबान को कहते हैं अरबी में। तो इसके भी 3 मखरज हैं, मसलन के इसके भी 3 हिस्से हैं। जुबान की जड़ है, जुबान की जड़ जो है जो गले की तरफ है उसको कहते हैं जुबान की जड़। और उसके बाद है वस्ते जबान, दरमियानी वाला हिस्सा जो है वो है वस्ते जबान। आगे है नोके जबान, ये जो है नोके जबान, ये जो आपकी नोक है, इससे भी हरूफ अदा होते हैं। आगे है शफाताइन। शफाताइन जो है वो होंठों को कहते हैं हम, दोनों होंठ जो हैं इनको हम शफाताइन कहते हैं। ये भी हरूफ के मखारिज हैं, शफाताइन होंठ, ठीक है। आगे है जोफे दाहन। जोफे दाहन जो है वो खला, खला जो है वो आपके जो मुंह के अंदर जो हिस्सा है, आपकी जबान और तालों के दरमियान में जो खला है उसको हम जोफे दहन कहते हैं, यानी कि मुंह के खाली हिस्से को, हिस्सा को जोफे दहन कहते हैं, ठीक है। आगे खैशूम, खैशूम होता है नाक का बांसा। ये नाक की जो नरम हड्डी है इसके अंदर जो है नाक का बांसा, यानी कि नाक के अंदर जो खला है या जो भी है, नाक से जो आवाज आती है, खैशूम नाक का बांसा, नाक का बांसा, ठीक है, इसको कहते हैं खशुम। और ये इससे 1-2 हरूफ जो हैं वो अदा होते हैं, इससे ज्यादा हरूफ अदा नहीं होते। आगे दुआ खशूम नाक का बांसा है। असूल मखारिज हैं, मखरज की जमा जो है वो मखारिज है, इसका मतलब है निकलने की जगह। ये वो चीजें मैंने आपको बताई हैं जहां जहां से हरूफ अदा होते हैं, हरूफ निकलते हैं, ठीक है। इनका पता होना भी जरूरी होता है।
वो कितने हैं हरूफ मखारिज के, मतलब असूल मखारिज जो हैं वो कितने हैं 5, टोटल असूल मखारिज 5 हैं। नंबर 1 है हलक। हलक आपको समझ आ गई होगी कि हलक किसे कहते हैं। उसके भी आगे 3 हिस्से हैं, हलक की जड़ है, वस्ते हलक है और इब्तदाई हलक, 3। उसके बाद है लिसान, जबान, जबान की जड़, जबान, लिसान, जबान, उसके 3 हिस्से हैं। नंबर 1 है जबान की जड़, नंबर 2 है वस्ते जबान और नंबर 3 जो है वो है नोके जबान। ठीक है, उसके बाद है नंबर 3 वाला जो मखरज है वो है शफातैन, वो कहते हैं हम लिप्स, लिप्स को शफातैन कहते हैं, यानी कि होंठों को जो है हम शफातैन कहते हैं। उसके बाद है 4 नंबर पे जोफे दहान। जोफे दहान जो है वो मुंह के खाली हिस्से को कहते हैं, जोफे दहन, मुंह के खाली हिस्से को जोफे दहन कहते हैं। उसके बाद है खैशूम, नाक का बांसा, नाक का जो बांसा है उसको खैशूम कहते हैं। उससे 2-3 जो हरफ हैं वो अदा होते हैं। अब इसको आप नोट कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। दूसरा जो जब दूसरी क्लास होगी, मसलन के दूसरी क्लास के अंदर भी हम इसके जो पार्ट्स हैं, यानी कि हलक के 3 हिस्से हैं, इनसे कौन कौन से हरफ अदा होते हैं, लिसान है इसके 3 हिस्से हैं, इसके किस हिस्से कौन सा हरफ अदा होता है और कितने हरफ अदा होते हैं, शाफतैन है, जोफे दहन है, मुंह के खाली हिस्से को, खशूम है, नाक का बांसा। ठीक है, इनको हम बकायदा जो है वो तरतीब के साथ एक एक करके इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पढ़ते जाएंगे क्लास वाइज। ठीक है, और इसके बाद जो है वो आगे जो है वो इसके अंदर जो है वो दांतों की इकसाम आ जाती है और हरूफ आ जाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, सब कुछ चलता जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको भी सही तरीके से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और कामयाबी अता फरमाए, और मुझे भी इसको आपको सही तरीके से जो है वो इसको पढ़ने की, पढ़ाने की, मुझे जो आपको पढ़ाने की जो है सही तरीके से पढ़ाने की अल्लाह ताला मुझे तौफीक अता फरमाए। और अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल के ऊपर अगर आप न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकॉन को लाजमी दबाइएगा, क्योंकि जो हमारा सबक जो होगा वो मिस ना हो, वो आप तक जो है हमारी हर वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। ठीक है, इसको दोस्तों के साथ शेयर करने में भी इसका आपका फ़ायदा है, इसमें मेरा भी फ़ायदा है और आपका भी फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है इसमें, क्योंकि ये जो है हम कोई ऐसा कोई और काम तो कर नहीं रहे, हम तो ये नेकी का काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिस तरह मैं ये आपको बता रहा हूँ, इस मेरी इस वीडियो से अगर जो जो लोग सीखेंगे और कुरान पाक सही पढ़ना सीख जाएंगे वो, तो जब वो सही तरीके से पढ़ेंगे तो उसका सवाब जो है वो मुझे मिलना है, कुछ और मिले ना मिले, सवाब लाजमी मुझे मिलना है अगर जो कोई सीख के अच्छे से पढ़ जाता है। तो उसके बाद अगर आप अपने दोस्तों से शेयर करते हैं तो आपके सवाब में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे जैसे आपके दोस्त जो है इसको देखेंगे, इससे सीखेंगे, कुछ पढ़ेंगे कुरान पाक को सही तरीके से, तो आपको भी बाकायदा सवाब मिलता रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। ये मैं आपको सही तरीके से दिखा देता हूँ ताकि आप इसको नोट कर लीजिएगा। सही से जो है वो नज़र नहीं आ रहा, मुझे लगता है मुझे ना खड़ा होना पड़ेगा। ये देखें, असूल के मखारिज, मखरज की जमा है, और हलक, लिसान और शफतैन। ठीक है, तो जज़ाकल्लाह, मुझे इजाज़त दे दिएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जो है वो हम बाकी जो है सबक जो है वो लेसन नंबर जो है हम इंशाअल्लाह दूसरे सबक में पढ़ेंगे। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।